Andrew, though you have maintained in last conversation also that you are avoiding IT sector as of now, you have seen the earnings of Infosys and TCS as well, and management themselves are indicating challenging times ahead. So in that case, what's your view? Like the earnings, the management commentary makes you more confident and more convinced with your view regarding IT, as you have a void view on IT? I think challenging is kind of an understatement for what's really happening, to be honest. You know, again, I'll repeat that kind of, you know, the decade of growth is just behind this industry, and it's not coming back. And you know, they really have to reinvent themselves. So again, I go back to, you know, how do I value these this sector? And I've got to look at both, you know, whether they're going to do share buybacks to give me my money back, if they can't utilize it well, and or dividend yield. Now, you know, just notwithstanding the kind of buyback part of it, even with the dividends that some of them have announced, or how they would look at the free cash flow, they're still, you know, going to pay me, you know, just over 3% dividend yield. You know, it's not really kind of exciting me. So I still think the sector will undergo a derating in PEs, which means obviously then you get a better yield. So until that happens, I don't need to be in the sector. It's not going to show me any growth. If anything, there's going to be, you know, more problems or headwinds ahead for them in terms of visa problems. Not just in the US, you've seen it in Australia, Singapore. I suspect you're going to see it in the UK soon as well. So, you know, I don't need to kind of think about this sector because there's no growth and the P is too high until it gives me something which rewards me for being a shareholder. And I'm just not there at the moment. So we're getting closer, but it's nowhere nearby. बिल्कुल. इस बीच एक बार BEL को देखते हैं. BEL आज भी अच्छा मूव दिखा रहा है और इनफैक्ट इट हैज़ बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स. इस तरह की कंपनीज पर शर्मा जी क्या व्यू है आपका? देखिए, ये ऐसी कंपनी है जिसको लंबी समय के लिए रखा जाए तो इसी कंपनी से आपको कई अन्य कंपनियां मिल सकती हैं. वो इसलिए कि ये जो कंपनी है ये भारत सरकार की सबसे डिफेंस के अंदर फोर फ्रंट पे है ये कंपनी, और इसके अंदर अलग अलग जीवीज़ हैं जो अलग अलग लोगों के साथ बना रखी हैं. तो कभी भी वो कंपनी डिलिस्ट होके या एक स्पिन ऑफ हो सकती है, स्पिन ऑफ हो सकती है, या फिर अन्य कारण से ये है कि हमारे डिफेंस के अंदर जो एक्सपेंडिचर होना है और ये जो करंट वॉर क्लाउड्स हैं ये तो और ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे. तो उस दृष्टि से इसके अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी आना है, और आगे चलते हुए जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको जो एक्सपेंडिचर हम करते थे इंपोर्ट करके वो नहीं करना पड़ेगा. डोमेस्टिकली कंपनियां बनेंगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी. तो ये कंपनी लंबी अवधि के लिए होल्ड है. हमारा इस पर बाय है और इसको हम इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टर को सलाह देते हैं. ओके. Andrew, will you be picking any stock from fertilizer, FMCG or maybe from agri space after IMD's monsoon projections? FMCG is the only sector that we're kind of getting more enthusiastic about. It's a kind of it's a big leap because valuations again remain very high in the sector. But I'm looking a little bit further ahead and what GST can do for the whole industry, and that's what excites me. So I think you could go away again from these kind of single-digit, high kind of single-digit growth towards double-digit growth in 2018. So I think the sector will be re-rated going forward. And there's one or two companies, or in particularly one company where, you know, you saw the parent have a, you know, hostile takeover attempt. So I think there's going to be reorganization within that company as well, which will only be good for the bottom line. So I think it's a sector that I would like to, you know, kind of be in for the next, you know, 1 to 2 years. I think there's a whilst valuations, as I said, are challenging. I think there's a growth is going to start to pick up for these companies going forward, and I think along with that you'll get better earnings and maybe less price wars in the sector going forward. So it's FMCG is an area which we're liking a lot more.
इस बीच निफ्टी बैंक को एक बार देखते हैं। अब ये 120 पॉइंट नीचे है, यानी आधे % की गिरावट निफ्टी बैंक पर इस समय अपने खुलने के बाद के सबसे निचले लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI ये सारे काउंटर्स हैं जिस पर नुकसान है। SBI ऑलमोस्ट आधे % नीचे। यस बैंक अकेला ऐसा काउंटर है जो कि हरे निशान में, पर वो भी बैरली इस समय टिका हुआ है हरे निशान में। शर्मा जी, SBI या फिर यस बैंक, इन काउंटर्स पर आपकी क्या सलाह है? देखिए, SBI और यस बैंक में फ़र्क ये है कि जब कभी भी क्रेडिट साइकिल इम्प्रूव होगी, क्रेडिट ऑफटेक अच्छा होगा, तो SBI बेहतर परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज उसके जो लोन ग्रोथ है वो उतनी अच्छी फ़िलहाल नहीं है। और जबकि यस बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, पहले मार्केट लीडिंग है, और एक आधे RBL को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में उन्हीं का नंबर आता है ग्रोथ के अंदर। तो मेरे ख्याल से दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस दौरान में मेरे ख्याल से SBI में खरीदने में आपको जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा कम दिखता है, तो यहाँ पे SBI के साथ जा सकते हैं। हालांकि यस बैंक में भी बाय है, लेकिन इस वक्त SBI बेहतर लगता है। जी, एक बार कैश के स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं जहां पर बाइंग मोमेंटम और एक्सटेंड हुआ है। एक स्टॉक आप देख सकते हैं EIH, इनफैक्ट होटल शेयर्स परफॉर्म कर भी रहे हैं। EIH एसोसिएट, कामत होटल्स, इन स्टॉक्स की शुरुआत पॉजिटिव रुझान में हुई है। एक बार आप देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज UB होल्डिंग 5% ऊपर 2885 के लेवल्स पर यह स्टॉक आ चुका है। हालांकि जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश बायस के साथ ही हुई थी, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों पर UB होल्डिंग ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग और यूनाइटेड स्पिरिट्स तीनों डे लो पर बंद हुए थे। बाकी शेयर्स भी देखें तो दिन के ऊपरी स्तरों पर है। यूनाइटेड ब्रेवरीज भी डे हाई पर 735 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखें तो ये भी 1% ऊपर है। शर्मा साहब, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, लेकिन क्या आपने रेकमेंड किए हुए हैं अपने क्लाइंट्स को, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर कोई व्यू है इन स्टॉक्स पर? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स हम रिकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को लेने के लिए। हालांकि मैं खुद इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता, नहीं कोई फैमिली में करता है, लेकिन इसका जो एक्सेप्टेंस है वो आगे चल के बढ़ रहा है। इवन जो विमेन हैं दूर रही हैं, वो भी वाइट वाली वाइन्स और दूसरी चीज़ें ले रही हैं, उनके एग्जैक्ट नाम भी मुझे नहीं मालूम है। तो लेकिन ये एक सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ऊपर से ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, आप सीधा करें तो आपके पास, जिसके पास जो माल है उसके ऊपर वो लगातार कई साल तक बैठे रह सकता है। तो ये कंपनी 36% इंडियन फॉरेन लिकर, मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर के अंदर ये अपना वर्चस्व रखती है, मार्केट शेयर है। तो ये ऐसे माहौल के अंदर बड़ा अच्छा स्टॉक लगता है कि जबकि इसमें दिक्कतें हो रही हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद एक स्टेट आ रहे हैं जो शायद इसकी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही कंपनी इन जो लो एंड चीज़ों से, प्रोडक्ट से निकलने की बात कर रही थी, तो इसका 2% मध्य प्रदेश से आता है, तो इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जबकि आगे चलते हुए इसका डियाजियो जो 75% होल्डिंग बाकी अन्य जगह पे रखता है, यहाँ पे महज जिसकी 55% होल्डिंग है, वो भी कभी बढ़ सकती है। पिछली बार जो ओपन ऑफर में डियाजियो ने जब ये अपना स्टॉक लिया था 3050 के आसपास लिया था उन्होंने, जबकि अभी उसके ऊपर 50% आपको करीब उसे 33% नीचे, यानी यहाँ से अगर पुराना भाव आता है तो 50% के रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है कि 50 तो छोड़िए, पर आपको साल भर रखेंगे तो आपको 20 से 25% का रिटर्न पक्का मिल सकता है, क्योंकि इसके जो अर्निंग्स हैं वो आगे चलते हुए सुधरते दिखाई देंगे। और मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए आप स्टॉक लें ओपन ऑफर के लिए, लेकिन कभी भी जैसा बाहर के देशों में उसका होल्डिंग है, यहाँ पे भी ओपन ऑफर आप देख सकते हैं। आने वाले किसी भी साल के अंदर ये हो सकता है कि अपने स्टेक यहाँ पे बढ़ाया जाए।